Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu and good morning to all my dear students. Now we are going to learn about accountancy standard 11th standard quarterly exam 2022-23. The question number is 27th question number. How to calculate due date? Okay, so the question is given, the statement is the two statements are given, date of bill 1st March and 12th July, period of bill 2 months and 1 month. So due date is we have to calculate it. So inshallah. So 1st March 2 months. So March and April 2 months. So we have to the date of the month is May, because of March and April is 2 months is due. Okay. So March, April. So May is the month of due. So the date is 1, 2, 3. The 3 days are grace days. Okay. So 1, 2, 3 is a grace day. So we have to due date is 4th May. Okay, students, 3 days are grace days. Then 12th July is 1 month. So 12th July to 12th August. Okay. So 12th July to 12th August is a due date. Period of bill is 1 month. So 12th July to 12th August. So which means the 3 days are given. 3 days are grace days. 12, 13, 14. We have to correct 15. But 15th is Independence Day. Okay, students, this is a public holiday. So we have to, the due date is 14th. Okay. So 15th is Independence Day. So we have to correct the 14th August. 14th August is the due date. Then 15th August is a public holiday. Public holiday. It is a Independence Day. Okay, students. So I hope to every students we have to clearly understand, inshallah. So 3 days are grace days. We have to calculate it. Then month also we have to calculate it. So March and April is a 2 months period. So March, April. So automatically May. So 3 days are grace days. 1, 2, 3 is grace days. Then 4th May is due date. Then 12th July 1 month. So 12th July to 12th August. Okay. So 12, 13, 14. Then we have to collect the 15th. But 15 is a Independence Day public holiday. So we have to collect the 14th August. Okay, students. This is important questions. So I hope to second midterm and half yearly and also in a public exam also this question is a important question. I hope to all dear students, please I hope to all the students clearly understand, inshallah. All the students, please subscribe my channel and support to me. Assalamu alaikum and good morning. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu and good evening to all my dear students. Dear students, now we are going to learn about accountancy standard 11th standard in the question of quarterly examination 2022-23. The question number is 36th question number. Enter the following transactions in a single column cash book of Seshadri for May 2017. Okay, this is a single column cash book. Okay, students. Then there are statements or transactions are given. May 1st, the rupees. May 1st, cash in hand 40,000. May 5, cash received from Swati 4,000. May 7, paid wages in cash 2,000. May 15, sold goods for cash 9,000. May 18, purchased computer 15,000 rupees. May 22, cash paid to Sabapati 5,000. Date 28, May 28, paid salary 2,500. The last transactions of May 30, interest received 500 rupees. Okay, students, they are given transactions. We should follow the solution is single column cash book. Okay, students. So what is single column cash book? So single column cash book is nothing but
receipt and payment, only one transaction, either receipt or payment we should record it. Only receipt and payment also recorded. There are single column cash book or simple column cash book also asking you. So we are going to the solution. First, in the book of single column cash book, in the book of single column or simple column cash book of Mr. Seshadri. Seshadri for May 2017. Okay, students. First we have to the tables on the solution. All the students please must usage of scale and pencil, students. So first of all, date column, then receipt column. This is a RN column. RN column means a receipt number. This is a LF column. This is amount column. This is date column. The last amount column, LF column. This is a VN column. Okay, students. First we have to box tables are given. First date. Okay, students. Date, receipts. Receipts. RN means receipt number. Okay, students. Then LF, ledger folio, then amount or symbol, both are same. This is a debit side, credit side. Okay, students. Then date, payments. Okay, students. Payments. This side is receipt number. This side is we have to payment. So VN, voucher number. Voucher number. This is the LF column, ledger folio, then amount. So we have to open the table column. So then we have to go into the sum. So first of all, receipt and payment. So the transactions are given. So when goods, when cash are, we have to mainly concept for cash. Cash is comes in or cash is goes out. Okay, students. So is that cash is received, we have to post on a receipt side. If either we have to cash is paid or payment, so we have to post on the payment side. Okay, students. Then first of all, May 1st, 2017. May 1st, cash in hand. So the cash is in our hand. So receipt column we have to write down to balance brought down or to balance brought down or cash also. To balance brought down how much? 40,000. Okay, students. So in our hand, so 40,000 will be post on the receipt side, receipt column. Then cash received. Okay, so cash is comes in, which means received. So cash received from Swati. Who is given? Swati is given. So date 5. This is the date first.
So this is for date first. Date 5 is to Swati account. To Swati account is we will be received in 4,000 rupees. Okay, so then paid wages in cash. So this transaction is a payment transaction. So date 7 for what purpose? Wages. Okay, so wages account was payment. So how much? 2,000 rupees. Okay, students. The next date 15 sold goods for cash. Okay, so we have to sold the goods for cash. For receive the cash, then we will be sold the goods. So to receive to sales account, because cash is received, then after we have to sell the products, goods, what it may be. Date 15. So how much? 9,000 rupees. The next date 18. Purchase computer. We have to purchase computer for cash. Okay, is that credit? They will be mentioned. So they will be not mention the credit. So we have to consider the cash transaction. So purchase computer for cash. Is that any credit transaction? They will be mentioned credit. Okay, so purchase computer for cash we have to consider for cash. So cash will be goes out. So we have to automatically write down the payment side by computer. By computer, how much? By computer purchase, how much? For cash, 15,000 rupees. Okay, students. The next, cash paid to Sabhabati. So they will be automatically paid. So payment we have to posted to by Sabhabati account. By Sabhabati account, how much? By Sabhabati account, how much? 5,000 rupees. Okay, students. The next 28 paid salary. So we have to automatically in payment side posted paid salary for purpose. First we have to date is mentioned by computer. So computer's date is date 18. Very important, students. Then cash paid to Sabhabati on date 22. Okay. The next 28 paid salary. So there will be payment side we have to post it by salary account. How much, student? Paid salary 2,500. Okay, students. The last transaction 30 interest received. We have to receive, not paid. So we have to receipt side we have to post it on date 30 interest received. So to interest account. To interest account, how much? 500 rupees. So we have to check all the transactions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8 transactions are posted on. We have to check even 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, students. Then we have to calculation. So first of all, date receipt RN is I'm already asking to you receipt number. Then LF column means ledger folio, amount, date, payment. We have to the cash will be out, goes out. So there will be payment side. VN means voucher number. So we have to pay the cash. They will be given the receipt is we have to record on voucher. Okay, so voucher number. So the amount will be transaction is posted. Okay. Okay, sir. So all the transactions are recorded, are posted him. So we have to close him. Okay, students. The next step. So which side is
amount is more than. We have to calculate it. So 40,000, this is a most higher amount. 40,000, 40 plus 4, 44, we have to calculate it on this side. So 40,000, 4,000, then 9,000, next 500. So how much? 0, 0, 5, 4 plus 9, 13, money 1, 5, 53,500. Okay, so we have to post on 53,500. The same amount will be posted on the payment side, 53,500. Okay, students. So this side, what is the calculation? So 2,000, 15,000, 5,000, then 2,500. Okay, students. Then 0, 0, 5, 2 plus 5, 7, 7 plus 5, 12. Okay, students. 12 plus 2, 14, 4 remaining 1. Okay, so 24,500. Okay, so this side is calculation amount is 24,500. So we have to calculate on the receipt side 53,500. So what is the difference amount? So we have to subtract to the amount 53,500 minus the calculation of amount. Total amount is 24,500. 0, 0, 5 minus 5, 0. So 3 minus 4, the correct table. So we have to borrow 1, then 4. 13 minus 4, 7. 13 minus 4, 4, 5 plus 3, 8, 9, sorry. So 9. So 2 minus 4 minus 2, 2. 29,000. Okay, students. So 29,000 is a balancing figure. So this side is the differences. So 29,000 rupees is a balancing figure. Okay, students, by balance carried on in the month of May. So we have to calculate 30 or 31. So January, February, March, April, May. Okay, so this one is 31, this one is 30. So up and down. Okay, we have to calculate up and down for easy information. Up one is 31, down is February, so 28 or 29 either. Then 31, 30. So January, February, March, April, May. So May month is 31. So we have to calculate 31. My salary date is not given. So 28. Sorry, students. So 31st May, the balance carried on is 29,000 rupees. Okay, students, this is very, very important questions and easiest to sum. So what comes in, what goes out, which means cash comes in or cash goes out. Is that we have to sell, so we have to get getting the cash. Okay, so at the time of we have to receive the cash. So we will be recorded on the receipt side. Then after we have to pay either if any wages, computer, any person, so salary. So whatever may be the payment will be posted on payment side. Then is that we have to any commissions or any persons we have to sales, whatever may be the receipt the cash, you have to record on the receipt side. So this is a very, very simple cash book. This very, very simple questions. We have to. This question is maybe chance 99%. Okay, 99% will be important questions for half-yearly exam and even the annual exam also. Okay, students, they will be inshallah 3 marks. This question marks is given for 3 marks. Okay, so I hope all the students clearly understand. Inshallah, if any doubt, please comment to me. All the students subscribe my channel. Thanking you. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh and good. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज हम करना 11th स्टैंडर्ड का अकाउंटेंसी सिंगल कॉलम कैश बुक। ये क्वेश्चन करना क्वार्टरली एग्जाम में 2022-23 ये साल करना 36th क्वेश्चन नंबर में पूछ का है। एंटर द फॉलोइंग ट्रांसैक्शंस इन द सिंगल कॉलम कैश बुक ऑफ शेषाद्री फॉर May 2017। सो May 1st ये ट्रांसैक्शंस देखो है
फर्स्ट में कैश इन हैंड 40,000, 5th में कैश रिसीव्ड फ्रॉम स्वाति 4,000, May 7 paid wages in cash 2,000, May 15 sold goods for cash 9,000, May 18 purchased computer 15,000, 22 May cash paid to Sabapati 5,000, 28th May paid salary 2,500, 30 May interest received 500 rupees. So transaction देखो है. अब क्या मालूम करो बोलता है, देखिए एंटर द फॉलोइंग ट्रांसैक्शंस इन ए सिंगल कॉलम कैश बुक. क्या सो अगर हम मालूम करना क्या है, सिंगल कॉलम कैश बुक. सो इसका नाम करना अदर नेम क्या बोलते कि सिंगल कॉलम कैश बुक और सिंपल कैश बुक बोलते. अच्छा क्या, अब अगर हमें सोल्यूशन देखिएगा हमें. सो कैसे इसका करना अकाउंट फॉलो करते हैं. सिंगल कॉलम कैश बुक और single column or simple cash book of Mr. Seshadri for May 2017. इसमें क्या है कि सब लिख देते हैं हमें May 2017. तो क्या अब करना इसका अकाउंट फॉलो करेंगे. ऐसा कर हमें टेबल फॉर्म करना है. सो फर्स्ट क्या करना हमें डेट कॉलम डालते हैं. डेट कॉलम, रिसिप्ट कॉलम, आरएन कॉलम, एलएफ कॉलम, अमाउंट कॉलम, इसके बाद डेट कॉलम, इसके बाद पेमेंट कॉलम. ये ठीक है, पेमेंट ये वीएम कॉलम, ये आकर एलएफ कॉलम, ये आकर ना लास्ट अमाउंट कॉलम. ठीक है, ये करना पूरे बच्चे भी कंपल्सरी स्केल यूज करके तुम्हें लिखना. ठीक है, सो फर्स्ट क्या करना, ये डेट कॉलम, यहाँ करना रिसिप्ट, ये रिसिप्ट, यहाँ क्या बोलते कि आर्यन, आर्यन करना क्या बोलते कि रिसिप्ट नंबर. यहाँ करना एलएफ, एलएफ करना क्या बोलते कि लेडजर फॉलियो. यहाँ करना अमाउंट एंटर करते हैं हमें. इधर करना क्या है, ये डेट कॉलम, ये यहाँ करना पेमेंट कॉलम, ये पेमेंट कॉलम. यहाँ करना वीएन, वीएन करना क्या कहते कि वाउचर नंबर. ठीक है, सो यहाँ करना एलएफ कॉलम, सो यहाँ करना अमाउंट. ठीक है, सो आरएन करना है क्या बोलते कि रिसिप्ट नंबर. अच्छा क्या, वीएन करना है क्या बोलते कि वाउचर नंबर. अच्छा क्या, सो करना है रिसिप्ट. ये सिंगल कॉलम और सिंपल कॉलम कैश बुक क्या करना क्या बोलते कि सिंगल एंट्री इधर करना हमें एक पेमेंट करेंगे या कर रिसीव करेंगे. सो करना सिंगल करना जो मेंटेन करने का डबल एंट्री नहीं. सो करना सिंगल एंट्री मेंटेन करने को बोलता करना सिंगल कॉलम क्या, सिंगल और सिंपल कॉलम कैश बुक बोलते हैं. अच्छा क्या, अब इसका कैसा अकाउंट करना मेंटेन करते देखिए जा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैश इन हैंड. अब रिसीव करना क्या होता है कि रिसीव करना क्या होता है कि जो भी हमें करना रिसीव करते हैं, रिसीव करते हैं. सो करना जो मेन पर्पस क्या बोलते कि इसमें करना कैश का करना मेन इंपॉर्टेंट. सो कैश रिसीव करते कि नया कैश पेमेंट करते कि ये चला का मेन कॉन्सेप्ट बिकॉज ऑफ कैश बुक है ना. क्या सिंगल कॉलम और सिंपल कॉलम कैश बुक करते कि हमें रिसीव करेगा तो कि रिसीव कॉलम में डालते हैं, पेमेंट करेगा तो कि पैसे बाहर जाकर रहते कि हमें पेमेंट कॉलम में डालते हैं. अच्छा क्या, अब फर्स्ट ऑफ ऑल मई 2017 है नहीं क्या. सो 2017 में फर्स्ट क्या बोलते हैं कैश इन हैंड. सो अगर पैसा करना बिजनेस अंदर डालते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हाउ मच 40,000 पैसा का बिजनेस के अंदर आगो है क्या. नेक्स्ट
कैश रिसीव्ड फ्रॉम स्वाति, सो अगर कैश हमें रिसीव कर रही पेमेंट करनी हमें ले कोई को बोले थे, किसके पास ले कोई, स्वाति के पास ले, डेट 5 टू स्वाति अकाउंट, सो हाउ मच 4000. द नेक्स्ट पेड वेजेस इन कैश, सो अगर पेमेंट कर कोई वेजेस अकना में क्या फॉर व्हाट पर्पस वेजेस अकना में पे कर कोई, सो अकना ऑटोमेटिक कहां चला वो पेमेंट कॉलम में चल जाएगा. ओके क्या, सो 2017 में डेट क्या है 7, क्या डेट 7 डाल को क्या व्हाट फॉर व्हाट पर्पस वेजेस ने क्या वही वेजेस अकाउंट. सो हाउ मच वेजेस कितना दिया हमें 2000 रुपए. ठीक है, उसके बाद सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सो अगर हमें गुड्स अगर सेल कर कोई फॉर कैश पैसा रिसीव कर लगो हमें क्या करें गुड्स सेल करें, सो अगर पैसा अंदर आ कोई क्या, सो हम क्या करना रिसिप्ट कॉलम में लिखना. सो डेट क्या है डेट 15 है क्या सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू सेल्स अकाउंट. सो कई को से पैसा हम आएगा तो कि सेल्स करने से पैसा नहीं क्या, सो 9,000 रुपीज. नेक्स्ट डेट 18 परचेज कंप्यूटर, सो कंप्यूटर परचेज करें फॉर कैश क्या, सो इसमें कैश की क्रेडिट की देखो नहीं है, सो मैं क्या क्रेडिट कर रहा तो उन्हें मेंशन करता क्रेडिट कबूल को, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन कबूल को. सो अगर क्रेडिट कर नहीं दिया बोलते क्या हमें करना ऑटोमेटिकली कैश दे कुछ हमें करना कंप्यूटर परचेज करे वो हमें कंसल्ट कर लेना. सो करना पैसे बाहर जाको है कि नहीं क्या, सो कंप्यूटर अंदर आको है, सो करना ऑटोमेटिकली कैश बाहर चलेगा, विच मीन से पेमेंट कॉलम में डाल देंगे ये भाई कंप्यूटर अकाउंट में क्या है 18, सो डेट क्या है 15,000. नेक्स्ट 22 कैश पेड टू सभापति, सो पैसे बाहर जाको है किसे देंगे हमें सभापति को देखो इन्हें क्या, सो भाई सभापति अकाउंट, सभापति अकाउंट कितना 5,000 रुपये डेट 22 5,000 रुपीज. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 28 पेड सैलरी, सो सैलरी अगर पे कर रही सो ऑटोमेटिकली पेमेंट कॉलम में चल जाता. सो भाई सैलरी अकाउंट कितने सैलरी हम देख रही, सो हाउ मच 2,500 डेट 28 2,500 डाल देते हैं. नेक्स्ट लास्ट ट्रांजेक्शन है इंटरेस्ट रिसीव्ड, सो रिसीव करेंगे हमें ठीक है, सो अगर इंटरेस्ट आकर रिसीव करेंगे सो टू इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट रिसीव्ड नहीं क्या, सो अगर डेट 30 हाउ मच 500 रुपीज. सो पूरा ट्रांजेक्शन आगे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. सो अगर पूरा ट्रांजेक्शन हम क्या कर देना हमें पोस्ट कर देना, अब क्या करना हमें क्लोज कर देंगे अकाउंट्स को. खाली इसमें करना हम रिसीव करते हैं कि रिसीव कॉलम में डालते हैं, अगर इधर हम करना पेमेंट करके रहे थे कि हम आकर पेमेंट कॉलम में डाल देते, जिससे बोलते हैं सिंपल कॉलम और क्या बोलते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक डालते हैं. सो इधर हम रिसीव करें रिसीव कॉलम में, पेमेंट करें तो पेमेंट कॉलम में. इसमें का मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है कि कैश कॉन्सेप्ट हमारा समझ में क्या. अच्छा अब कौन सी तरफ ज्यादा है देखेंगे डिफरेंस इसमें 40,000 ज्यादा है क्या, सो अगर ये डेटा साइड है ये क्रेडिट साइड है, सो अगर ना डेटा साइड है यानी रिसिप्ट कॉलम आकर ज्यादा है, सो 40 + 4 44 है, 44 + 9 है 53, सो तुम्हारा डालेंगे हम जैसे तो 40,000 + 4,000 + 9,000 नेक्स्ट 500 ठीक है 0 0 5 9 विचार कितना 13 ठीक है, सो 13 सो 500 50 पर 3 500 50 पर 3 500 डाल देते हैं. अब सेम अमाउंट ठाकुर भी यहाँ क्या है सेम अमाउंट यहाँ ठाकुर डाल देना हमें. अब ये तरफ का पेमेंट चेक कितना है देखिए, सो 2,000 15,000 5,000 2,500 टोटल डालेंगे क्या 0 0 5, सो 2 7 12 14 बाकी 1 2 20 पर 4 500 आया ठीक है. अब करना ये अमाउंट से 50 पर 3 500 से ये जो टोटल करेंगे क्या 24,500 है, हम क्या करेंगे लेस कर डालना, लेस कर देगी जो बैलेंस आता है वो अमाउंट ठग डालना है. सो 0 0 0 लेस कर देगी, सो अगर 3 में 4 जाने बहुत से ले लो ये आकर 4 होगा ठीक है. अब अगर 13 में 4 जाए तो कितना
9 नहीं क्या, सो 9 हुआ। अब 4 में 2 गया तो कि 2 नहीं क्या, सो अगर हमें कितना आंसर 29,000, सो 29,000 रुपीज। क्या ये भाई बैलेंस कैरी डाउन। सो मे मंथ का बजट क्या आएगा, हम लोग 30 आएंगे 31 आएंगे कि कैसे मालूम करेंगे। सो हमें आकर हम उस्ताद बोलेंगे सो क्या करना, जनवरी ऊपर जो घड़ा है ठीक है, फर्स्ट करने का 31 है, सेकंड जो घड़ा है वो करना 28 की 30 के हिसाब में क्या। सो करना जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, सो ऊपर आता है क्या। सो अगर 31 का मंथ है, सो अगर 31 का डालते ठीक है, 31 है। सो अगर यह आंसर हमें मालूम करें, तो इससे बोलता है सिंगल कॉलम और सिंपल कॉलम कैश बुक बोलते ठीक है। इसमें क्या अगर तुम्हारा डाउट है बोलते इंशाल्लाह मुझे जाकर कमेंट्स कर सकते हैं। सो इंशाल्लाह मैं करना तुम क्या करता हूँ उसका करना रिस्पांस करता हूँ। पूरे बच्चा करना इंशाल्लाह सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों आज हमें करना है 11th स्टैंडर्ड का अकाउंटेंसी स्टैंडर्ड 11th क्या चैप्टर नंबर 10 डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग हम मालूम करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल करना डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग किसे बोलते हैं। सो डिप्रिसिएशन इज नथिंग बट द रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट्स। क्या फॉर एग्जांपल अभी अगर जो पेन है ये पेन का वैल्यू अगर कितना, फॉर एग्जाम्पल 25 रुपए लो ना, हाँ 25 रुपए पेन आकर हमें यूज करने के बाद किसी और को दे तुम्हें कबल है तो कि जो 5 रुपए 10 रुपए रिड्यूस करके मैं आकर दूसरों को देते क्या। सो व्हाट अबाउट द 5 रुपीज 10 रुपीज, दैट 5 रुपीज 10 रुपीज इज कॉल्ड डिप्रिसिएशन ठीक है। सो अगर अब ओरिजिनल कास्ट का वैल्यू क्या होता है 5-10 रुपए कम होता नहीं क्या। सो अगर जो यूज करने के बाद आकर जो दूसरों को देते हैं हमें, जो रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट्स इज कॉल्ड डिप्रिसिएशन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल find out the rate of depreciation under straight line method from the following details. So original cost of assets 10,000. So तीन statement देखो है। So estimated life of assets 10 years, estimated scrap value 2000. ओके, अब क्वेश्चन देखो है हमें आकर इसमें इसका स्ट्रेट लाइन मेथड मालूम करना। क्या मालूम करना, स्ट्रेट लाइन मेथड मालूम करना। सो आकर सोल्यूशन डाला जाएगा आपको। इसका करना दो फार्मूला है, दो चीज मालूम करना, एक अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन मालूम करना और परसेंटेज ऑफ मतलब अगर रेट ऑफ डिप्रिसिएशन मालूम करना। सो परसेंटेज कितना परसेंटेज आकर हमें डिप्रिसिएशन करे आकर मालूम करना। तो क्या या करना एज पर अगर एवरी स्टूडेंट वी नो वेरी वेल या कर वेल एक्सप्लेन मालूम करना तुम्हें ये डिप्रिसिएशन अकाउंट करना क्या हर एक अकाउंटेंट अगर मालूम करने का चीज है। सो फर्स्ट करना अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन हमें मालूम करेंगे। So amount of depreciation फर्स्ट क्या है इसमें ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू माइनस डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द असेट्स। क्या करना अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन का फॉर्मूला। ओके क्या अब अगर से समझा देंगे। सो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट्स कितना वैल्यू 10,000 है माइनस स्क्रैप वैल्यू का अमाउंट कितना है 2,000 है। 10,000 का माल अगर क्या कर रहे हैं 2,000 रुपये लेस करके हमें देखो ही क्या। सो करना ये मालूम करते हैं हमें 2,000 रुपये लेस करते हैं फॉर आवर डिवाइडेड बाई एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ असेट्स 10 साल का प्रॉपर्टी निकला है। सो करना 10 साल की प्रॉपर्टी सो करना 10 ईयर्स के लिए यहाँ। अब 10,000 माइनस 2,000 8,000 ने क्या डिवाइडेड बाई 10 ईयर्स ने क्या। सो करना ये जीरो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, ये जीरो कैंसिल करते हैं। सो कितना है अपना 800 रुपए। क्या अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन कितना मालूम कर हमें 800 रुपए।
और क्या अब आगे ना 800 रुपये लेस करते हैं अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन। अब जो मालूम कर रहे हैं भाई रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। क्या करेंगे इसका फॉर्मूला क्या, अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन डिवाइडेड बाई ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट्स। इंटू 100 कहीं डाल देते परसेंटेज मालूम करने समय डालते हो। सो फॉर्मूला की एक पेन है, इसे एक पेन का यूज करते एक अट्रैक्शन को वस्ते तुम्हें क्या करना ऐसा करना एग्जाम हॉल में सर्च करना, तुम्हें ब्लैक पेन ब्लू पेन यूज करो ठीक है। सो करना अब रेट ऑफ डिप्रिसिएशन मालूम करेंगे। फर्स्ट आकर अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन कितना मालूम करेंगे 800 रुपये ने क्या, तो 800 डालियो डिवाइडेड बाई ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट्स कितना है 10,000 ने क्या, सो 10,000 डालेंगे इंटू 100 को 100। अब कैंसिल करेंगे क्लास मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या, सो एक जीरो कैंसिल एक जीरो कैंसिल एक जीरो कैंसिल है। सो इस आगे क्लास मल्टीप्लिकेशन बोलते ये दो जीरो कैंसिल करेंगे। सो हम करना 8% क्या करेंगे हमें हम करना रेट ऑफ डिप्रिसिएशन मालूम करेंगे। सो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इज 8%। सो हर एक अकाउंट ना करना कंपल्सरी आपको मालूम करना है ये। सो करना अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन मालूम करना और रेट ऑफ डिप्रिसिएशन मालूम करना, इसे बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड बोलते हैं, डिप्रिसिएशन का स्ट्रेट लाइन मेथड बोलते हैं। ओके क्या सारे बच्चा करना सही बात समझे होंगे। सो करना इसमें कहते डाउट है कि इंशाल्लाह कमेंट्स कर सकते हैं। पूरे बच्चा करना सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो एंड लाइक करो। ओके क्या अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों आज हमें अकाउंटेंसी स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड का क्वार्टरली एग्जामिनेशन ये साल जो 2020 ये साल जो चलेगा 38th क्वेश्चन नंबर देखेंगे हमें। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ जय कुमार आज ऑन 31 दिसंबर 2016 ये देखने वाले हैं। सो अगर 3 स्टेटमेंट देखो है, ये क्या करना बैलेंस एज पर कैश बुक 7,130, बी check deposited but not clear 1,000 rupees. A customer has deposited rupees 800 into the bank directly. So अगर ये 3 स्टेटमेंट देखो है, हम अगर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आकर देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट करना है क्या, कि जो बैंक के जरिए से जो ट्रांजेक्शन करते हैं उसमें अगर जो डिपॉजिट कर रहे हैं डायरेक्ट डिपॉजिट कर रहे हैं वो ऐड होगा क्या, क्या या कर चेक डाल को ही वो चेक आकर डिसऑनर हुआ कि या करना ऐड होगा कि या करना जो क्लियरेंस जो करते हैं क्या, ये क्लियरेंस को बोलते हैं ना रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बोलते हैं। तो क्या डिपॉजिट करेंगे चेक बाउंस होगा रहेगा। सो ऐसा करना एक डिपॉजिट करने वाला करना या चेक देने वाला करना क्या एक अमाउंट डाल को आकर साइन डाल देंगे वो अमाउंट रखना उसमें नहीं रखूंगा क्या चार्ज पकड़े चार्ज होगा रहेगा उसमें क्या। फॉर एग्जाम्पल अब मेरा अकाउंट में करना एक 10,000 रुपीज है समझ क्या आता हूँ 10,000 रुपीज आकर मैं चेक डाल को देता हूँ। अनफॉर्चुनेटली मुझे करना क्या तो एक SMS चार्जेस है ऐसे क्या तो पार करेंगे। सो करना मेरे पास अगर 9,980 रुपीज है, सो 20 रुपीज कम है। अब मैं 10,000 का मैं करना सही डाल देता हूँ बोलती क्या होगा चेक करना डिस्काउंट होगा कि नहीं क्या तो बिकॉज ऑफ 20 रुपीज क्या है मेरे पास अवेलेबल नहीं है क्या स्टेज पे। सो सॉरी अलार्म आया था क्या यह करें 20 रुपीज क्या नहीं था उसमें अवेलेबल नहीं रहने की वजह से क्या हुआ मुझे आगे मेरा चेक अगर डिस्काउंट होगा। ऐसा जो अगर प्रॉब्लमेटिक होता है क्या उसका करना हमें करना क्लियरेंस करने को बोलता करना बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बोलते हैं। और क्या अच्छा करना हमें सोल्यूशन डाले जा। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर जय कुमार।
इसका अकाउंट बुक हमें कंपल्सरी लिखना है एज ऑन 31 December 2016, 31 December 2016 या करना कंपल्सरी करना किसका अकाउंट क्या बुक करना हमें लिखना होगा। सो फॉर्मेट डाल लेंगे हमें। तो पूरे बच्चा का कंपल्सरी स्केल यूज करो बेटा, जब वो करना क्या होगा नीटनेस आएगा। समझ में आया क्या? तो क्या करना अमाउंट कॉलम, ये भी अमाउंट कॉलम या फिर ग्रैंड टोटल है या फिर सब टोटल कर सकते हैं या फिर पर्टिकुलर्स रख लेंगे। क्या करना पर्टिकुलर्स या करना अमाउंट, ये भी अमाउंट है। दो अमाउंट कई क्वेश्चन बोले थे कि क्या करना जो कैलकुलेशन करते हैं वो कैलकुलेशन टोटल डालने से या करना जो ग्रैंड टोटल जो इसमें आंसर था वो उठा को इजी से आइडेंटिफाई करने से यहाँ डालते हैं हमें। क्या अब अगर हमें समझा लेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है बैलेंस एज पर कैश बुक। हमारा करना कैश बुक कितना है, बैलेंस एज पर हमारे पास अगर कितना कैश बुक है कितना कैश लिखेंगे। सो फर्स्ट लिख लेते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक। कितना है हमारे पास 7130 7130 लिखा डायरेक्ट लिख देना 7130 लिख देते। इसके बाद से चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर। क्या चेक डिपॉजिट करे ही बट नॉट क्लियर है। सो कहना अभी ऐड हुआ नहीं क्या। सो कहना उसके नीचे हमें क्या करना तो बोलते कि यहाँ करना लेस करके डालेना हमें। अभी हमारा ऐड हुआ नहीं बट नॉट क्लियर करके हमारा अकाउंट में हमारा अकाउंट में करना क्या हुआ नहीं या करना डिपॉजिट करे। सो जो चेक हमारा में ऐड हुआ नहीं। सो ऐड होकर क्या करना हमें यहाँ डालते थे क्या। सो ऐड नहीं होने की वजह से लेस में रहते हैं हमें कर लेस में डालते। सो चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर। पैसा के साथ डालना हमें बट नॉट क्लियर। हाउ मच बेटा बट नॉट क्लियर 1000 रुपीज है। टोटल क्या नहीं करना डायरेक्ट यहाँ डालना से भी नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल करना एक एक हमें करना स्टेटमेंट करना फिल करने के बाद हमें करना क्या करना है लेस करना है ऐड करने के देख लेना। सो ये भी दो भी होगा। अब सी देखो ये कस्टमर हैज डिपॉजिट ₹800 इनटू द बैंक डायरेक्टली। उन्हें खुद क्या करना डायरेक्ट करना बैंक में करना हमारा अकाउंट में डाल देना। सो क्या करना हमें ऐड कर लेना डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया बोल करना हमारे पास टर्न लाइफ दिखा था सर डिपॉजिट कर दिया ऐसा बोलते क्या। सो क्या होगा वो ऐड होगा मतलब क्या। सो कहना ये कस्टमर हैज डिपॉजिटेड directly how much amount 800 तो बेटा। सो 3 ट्रांसैक्शन देखो है। सो 3 ट्रांसैक्शन हमें क्या करना है डाल देना हमें। तो जब क्लोज कर लेंगे अकाउंट मालूम कर लेंगे। अब ये दो को ऐड कर लेंगे पहला 0 3 ये 1 + 8 9 7 सो 7930 7930 रुपए। अब करना ये क्या करना हमें चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर या करना क्लियर नहीं हुआ उसके साथ क्या करते हैं माइनस करते हैं लेस करते हैं क्या। सो करना 1000 रुपए गया तो कितना 0 3 9 7 में गया तो कितना 6 ठीक है। सो 6930 यहाँ करना क्या कहते हैं हमें बैलेंस एज पर कैश बुक। तो यहाँ क्या होगा बैलेंस एज पर पासबुक। सो 6930। सो इसलिए बोलता करना क्या है इसमें करना जो
ऐड जो बैंक में जो कैश डालते नहीं डालते, जो कैश डाले तो डायरेक्ट डाले बोलते कि आपको पैसा ऐड होगा, सो आकर अब शुरू में बोला नहीं क्या, सो डिपॉजिट करे आकर बट नॉट क्लियर है, इसके लिए प्रॉबिलिटी क्या बोले थे कि क्या होगा, ये स्टेटमेंट मालूम करने को करना बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मालूम करते हैं। इसमें डाउट है तो कि इंशाल्लाह पूछो, कमेंट्स करो, पूरे चाकना सब्सक्राइब करो कि जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh and good morning to all my dear students. Now we are going to learn about accountancy standard 11th standard quarterly examination 2022-23. So this year the question number is quarterly examinations question number is 38th question number. From the following particulars prepare a bank reconciliation statement of Jay Kumar. Okay students. So as on 31st December 2016 there are given three statements, three transactions. Balance as per cash book 7,130. B. Check deposited but not cleared 1,000 rupees. A customer has deposited rupees 800 into the bank directly. Okay students. So what is meant by bank reconciliation statements? So bank reconciliation statements is nothing but the transactions of bank related. So there are deposited or not deposited, which means deposited into bank but not cleared. So that's the problems are solved with the help of bank reconciliation statement. Okay, now we are going to the solution to the bank reconciliation statement. So the statement of bank reconciliation statement of bank reconciliation. Statement of Mr. Jayakumar. As on 31st December 2016. Okay students. This is very important. Those accounts are we have maintained. So we have to give format. All the students please use the scale and pencil. Okay students. Because of neatness. The amount the amount transaction, amount column, this is a particular column, particulars, amount column, this is also amount column. Why we have to put on the two columns? This is a subtotal column. All the calculations are written on the subtotal. This is a grand total column. So we have to write down. Okay. Then first of all, we have to write down on the balance as per cash book. As per cash book. How much? 7130. 7,130. Okay students. We have to directly write down on the bank reconciliation statements. The next, the second question, check deposited but not cleared. So check will be deposited but not cleared. So what we have to do? So we have to do on a less, because if added in our account cash book, we have to add in the add column. Okay, not deposit into bank but not cleared. So we have to write down on the less side. Okay, so we have to less on the bank reconciliation statement. Check deposited but not cleared. But not cleared. Okay, so how much? 1,000 rupees. The third transaction. A customer has deposited rupees 800 into the bank directly. So a customer is directly deposited in our bank. Okay. So we have to add column, add to the
transaction. So a customer has deposited directly into bank. Okay, students, how much? 800 rupees. So then we have to, so 3 transactions are posted here. So we have to calculation. Okay, students, then we have to calculation here. So balance as per cash book 7,130. So a customer has deposited directly into bank 800. So we have to calculate how much? 0, 3, 1 plus 8, 9, 7. This is added in. Then less, this was not cleared. So if the not added in our bank account, so we have to less on the bank reconciliation statement. Check deposit but not cleared 1,000 rupees. So what about in our bank transaction? So 0, we have to less, okay, less on this amount. 0, 3, 9. So 7 minus 1 is 6. So 6,930 is your bank passbook. Balance as per, balance as per passbook or bank book. Passbook or bank book. Okay, so 6,930 is the balance as per passbook or bank book. This is the bank reconciliation statement. If added the amount of in our bank, so we have to add. If not cleared in our amount in our bank, so is the problematic of dishonors, bounced. So the problematic are less in the bank reconciliation statement. This is the find out of bank reconciliation statement. Okay, students, I hope every students they are very well understand it. If any doubt, please comments to me, share, subscribe to me. Thanking you. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning to all. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh and good evening to all my dear students. Dear students, now we are going to learn about accountancy standard 11th standard quarterly examination 2022-23 this year. So the question number is 31. Complete the accounting equations. Okay, so complete the accounting equations. The missing figures are given. So we have to fill up the accounting equation. Okay, students, assets equal to capital plus liabilities. Assets equal to capital plus liability. Okay, so assets is 3 lakh. So capital is 80,000. What about the liability? You have to find out the liability. So the easily question is 3 lakh. Okay, students, 3 lakh minus 80,000. So the equal to is 3 lakh. So 80,000. What is the missing figure? So we have to minus the capital in assets. So 0, 0, 0, 0. So 1 is borrowing. So remaining 2. So 10 minus 8, 2. So 2 is balance. 2,20,000. Okay, students. 2,20,000 is a liability. So 2,20,000 plus 80,000 is 3 lakh. Okay. This is a missing figure. The second one, B, assets equal to capital plus liability. So capital and liabilities are given. Okay. So the missing figure is assets. How much is assets? So 1,20,000. 1,20,000 plus symbol 80,000. Okay, students. 0, 0, 0, 0, 2 plus 8, 10. Okay, so remaining 2. So 2 lakh. So assets is 2 lakh. This is a missing figure of assets. Okay, so assets equal to capital plus liabilities. This is a missing figure of liabilities. So assets and capital is given. Then we have to find out the 2,20,000 is the liability. Okay, students. Then option B,
assets equal to capital plus liability. So assets is a missing figure. So capital and liabilities is given. Okay. So 1 lakh 20 plus 80,000. How much? 2 lakh. So we have to find out the 2 lakh of assets. This is here accounting equations. Okay, students. The next 34th question. This is 31st question. 34th question. Mention the subsidiary books in which the following transactions are recorded. Okay, students. The transactions is given. We have to find out the which account posted. Which account is related to the transactions. Okay, students. Then there are 6 transactions is given. First of all, sale of goods for cash. So sale of goods for cash. This is a cash book. We have to record it on a cash book. Okay, students. Then sale of, because of cash transaction. So we have to clearly understand it. Then sale of goods on credit. Sale of goods on credit. So this is here. The second transaction is credit transaction. So we have to record it on a sales book account. Okay, students. Because of sale of goods. So sales book account. The next, purchase of goods on credit. Okay, students. This is here. Credit. This is also a credit transaction. So purchase of goods on credit. We have to record it on a purchase book account. Purchase book account. Okay, student. The next, when the proprietor takes goods for the personal use. So the personal use is not recorded in a cash book, sales book, purchase return book, purchase book. This is a journal proper. We have to record it on a journal book account. Okay, journal proper account. We have to record on a journal. Okay, because of drawings the goods. Okay, drawings the goods. So we have not recorded on cash book, sales book, purchase book, purchase return book. Okay, students. So then goods returned to supplier for which cash is not received immediately. So not received immediately, which means this is the goods return. So when we have to return the goods, before we have to purchase the goods, then we have to after return the goods. So purchase return book. Okay. This transaction is a purchase return book. Purchase return book account. Okay, students. The next, assets purchased as credit. So this is not a business purpose. This is a assets is purchased. Okay. This is not earning profit. Assets is a property. Okay. For the business purpose, only they cannot earn the profit. So we have to assets purchase. So we have to record it on a journal proper. Okay, students. So I hope every students all 31st question and 34th question is clearly understand. Inshallah, I hope. Then we have is there any misunderstanding or any doubt? Please comments to me, share and subscribe to me. Thanking you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, and thanks to all. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच्चों, आज हम करना उर्दू मीडियम में आकर देखेंगे अकाउंटेंसी 11th स्टैंडर्ड क्वार्टरली एग्जामिनेशन 2022-23 ये साल का 31st क्वेश्चन नंबर है। कंप्लीट द अकाउंटिंग इक्वेशंस। असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, यानी असेट्स इक्वल टू असेट्स का क्या बोले थे कि कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज असेट्स। ओके, अब असेट्स का वैल्यू 3 लाख देखो है, कैपिटल का वैल्यू 80,000 देखो है। अब करना हमें लियाबिलिटीज करना क्या है मालूम करना है। देखिए सब करना असेट्स करना 3 लाख इक्वल टू देखो 80,000 करना कैपिटल है। व्हाट अबाउट लियाबिलिटी? अब 3 लाख में 80,000 हमें क्या करना निकालना है। निकाले बोले देखिए हमने लियाबिलिटी आया था हमने। सो लियाबिलिटी करना क्या हुआ? जिम्मेदारी। किसी किसी करना कितना खर्च हमें देने का है समझ में क्या यह करना। जो लोन ले कोई बैंक में लोन ले कोई बोलते कि बैंक अगर रीपे करना, बैंक को आकर रीपे करने का है ठीक है। और क्रेडिटर्स ही जो खर्च ले कोई हमें उनको आकर रीपेमेंट करने का ये पूरा करना जिम्मेदारी, इसे बोलते हैं लायबिलिटीज बोलते हैं।
सो अगर ना अब 0 में 8 नहीं जाएगा, बाजू से 12 कर लेंगे, 10 को 10 में 8 जाते कि 2, अभी नहीं कितना हुआ 2 हुआ क्या, सो 2,20,000। सो लायबिलिटी कितना 2,20,000 क्या। अब देखो 2,20,000 प्लस 80,000 कितना हुआ 3 लाख हुआ क्या, इक्वल टू 3 लाख से। अब असेट्स का करना मिसिंग फिगर है। अब कैपिटल प्लस लायबिलिटी दो भी देखो 1,20,000 प्लस 80,000 कितना हुआ 1,20,000 और 80,000, हाउ मच 0,0,0 ये दो को क्या है ना ऐड करना, प्लस सिंबल देखो है ठीक है। सो करना ये दो को ऐड करके कि हम ना करना इक्वल टू असेट्स मालूम होता। सो 0,0,0,0 2 प्लस 8 10 से 2 लाख। ओके स्टूडेंट्स 2 लाख आया। सो यह करना अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह करना 31 है, ये 34 देखो। मेंशन द सब्सिडरी बुक्स इन विच द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। क्या ये ट्रांजैक्शंस देखो है, यह करना ये कौन सी सब्सिडरी बुक की है, ये परचेज बुक की, कैश बुक की, परचेज रिटर्न बुक की, नहीं सेल्स बुक की, सेल्स रिटर्न बुक की, या करना जर्नल प्रॉपर की, या करना ट्रांजैक्शन देखो मैं करना कौन सा किस में अगर हम रिकॉर्ड करेंगे तो मैं क्या ये मालूम करेंगे। सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश, सो अगर कैश ट्रांजैक्शन, सो करना अंकी में हम क्या करना कैश बुक में हम क्या करेंगे रिकॉर्ड करेंगे, कैश बुक अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। देन सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, सो क्रेडिट करें क्या खलास में क्या, सो करना क्या क्या ये अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन होने से सेल ऑफ गुड्स सेल्स बुक में हम क्या करेंगे रिकॉर्ड करेंगे। सो कैश होती कैश बुक में, क्रेडिट होती कि क्या क्रेडिट करें हमें सेल हम करें क्रेडिट सेल करें, सो करना सेल्स बुक में करना हमें करना रिकॉर्ड करते हैं। परचेस ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, या ये भी अगर क्या है क्रेडिट ट्रांजैक्शन होने से परचेस करें, सो करना परचेस बुक में हम क्या करते हैं रिकॉर्ड करते हैं। क्रेडिट ट्रांजैक्शन होने से परचेस बुक में रिकॉर्ड करते हैं। व्हेन द प्रोप्राइटर टेक्स गुड्स फॉर द पर्सनल यूज, यह करना बिजनेस ओनर क्या करे है गुड्स आ करना जो बिजनेस से जो गुड्स है जो स्टॉक उसको आ करना ड्राइंग करे पर्सनल यूज को आकर यूज कर लिया, सो आ करना ये कैश बुक की, सेल्स बुक की, परचेस बुक क्या करना नया आना, या करना जर्नल प्रॉपर में आऊंगा, जर्नल अकाउंट करने से क्या करेंगे रिकॉर्ड करेंगे। दूसरा गुड्स रिटर्न टू सप्लायर फॉर विच कैश इज नॉट रिसीव्ड इमीडिएटली। अब गुड्स रिटर्न कब हम करेंगे जब हमें ले को रहते अपना, विच मीन्स हमें परचेस को रहते जमा करना गुड्स रिटर्न करना होगा। अब गुड्स रिटर्न टू सप्लाई करते क्या मतलब परचेस रिटर्न क्या, सो फॉर विच कैश इज नॉट इमीडिएटली रिसीव्ड, नॉट इमीडिएटली क्या परचेस रिटर्न बुक, परचेस रिटर्न बुक में आकर हमें क्या करेंगे रिकॉर्ड करेंगे। दूसरा असेट्स परचेस एज क्रेडिट, अब असेट्स लेंगे तो क्या करना बिजनेस पर्पस को लेंगे, इसे बेच को करना प्रॉफिट अर्न करना तो क्या भी नहीं क्या, इसे अगर प्रोसेसिंग करने भी होगा भी नहीं असेट्स नहीं क्या, तो उसके वास्ते यह करना कैश बुक की, परचेस रिटर्न की, सेल्स रिटर्न की, इसमें अगर हम करना रिकॉर्ड करेंगे नहीं बल्कि क्या करना है ये क्या होगा जर्नल अकाउंट में हम क्या करना रिकॉर्ड करेंगे जर्नल प्रॉपर वही क्या। अच्छा इसमें करना कहते डाउट है कि इंशाल्लाह जाकर कमेंट्स कर सकते हैं, तो सारा बच्चा करना लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो फर्स्ट ऑफ ऑल। और अगर ये पूरा क्वेश्चन अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वार्टरली एग्जामिनेशन का, ये किच एक वीडियो से बना कर करना पूरा भी 31 से लेकर 37 38 तक करना, सो एक 2 मार्क्स 3 मार्क्स शायद समझता हूँ ये, सो ये पूरा भी आकर तो मैं क्या करता हूँ एक वीडियो से बना को एक लॉन्ग वीडियो से बना को अपलोड करता हूँ। तो जज़ाकल्लाह खैर, इसमें तो डाउट है कमेंट्स कर सकते हैं, और भी अगर तुम्हें जरूरत है ऐसा ये सम डालो साहब ऐसा करना, दूसरा क्वेश्चन भी सम तुम्हें समझ में आया नहीं होती की तो तुम्हें फोटो पाउट तुम्हें सेंड करो, इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट टू तुम आकर आंसर आकर तुम क्या करते हो सही मायने में डाल के तुम्हें समझाता हूँ इंशाल्लाह। ओके, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।